as already said, this is the part of Unit 13, which is your basically methodology part of your CSIR NET Life Science syllabus. So बहुत सारे बच्चे यूनिट 13 के बहुत सारा मेथडोलॉजी है तो बहुत सारे टॉपिक स्किप करते हैं, बट दिस इज द टू मेन टॉपिक्स विच आर frequently asked and very easy to understand. So first is share my screen. Okay, sir, is it visible? यस, नहीं स्क्रीन अभी नहीं आया है, स्क्रीन को करिए फुल स्क्रीन में. यस, नाउ विजिबल. Okay, यस. so this is in PPT mode, right? Sir, is it visible? Yes, yes. Okay. So yeah, this is the unit 13 electroencephalogram methods, and basically we are focusing on two basic methods, which are electroencephalogram and patch clamp recording. So first start with some basics, because electroencephalogram is basically connected with your animal physiology. In animal physiology, you will study one structure of neurons, brains. So this is basically extended of this part. So I kept one basic human brain structure. So as you can see, this is your brain. Wait, I point. So this is your temporal lobe, frontal lobe, parietal lobe, and occipital lobe, and this is your cerebellum, and which is connected to the your spinal cord. So what is electroencephalogram? So basically, electroencephalogram is a one kind of electrode system which connected to this lobes, and it record your neuronal activity. As you already know, neurons are basically conductance of sodium and potassium ions का पूरा जो चेंज होता है कि सोडियम रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, उसके बेसिस पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है ब्रेन में, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जो कैप्चर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. तो दिस आर द रीजन ऑफ योर ब्रेन वेयर वी केप्ट दैट इलेक्ट्रोड्स फॉर द रिकॉर्डिंग. Okay, so this is the basic outline of this whole method. Fine. So electroencephalogram is this test that measures the electrical activity in the brain. This test is also called an EEG. So what EEG, I hope you can understand this. So test uses small metal disc called the electrodes. वहां पे एक स्मॉल इलेक्ट्रोड्स होंगे जो तुम्हारे सोडियम और पोटेशियम आयंस के चेंजेस की वजह से जो भी इम्पल्स जनरेट हुआ है उसको कैप्चर करेंगे और उसका एक डायग्राम बनाएंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि हमारा ब्रेन एक्टिव है, इनएक्टिव है, स्लीप की कंडीशन में है, हाईली एक्टिव है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राफ वी understand how our brain it works. So brain cells communicate via the electrical impulse, as I said, and this activity show up wavy lines on a EEG recording. as जैसे हार्ट की जैसे लाइंस होती है, PQRST waves होती है, वैसे ही EEG के आउटकम में हमें एक वेवी लाइंस मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे EEG recording. तो brain cells are active cells the time even during sleep. ओके, एज वी ऑल नो, अगर हम सो रहे हैं तो भी हमारा ब्रेन एक्टिव है, नॉट हाइपर एक्टिव बट एक्टिव है. तो इन EEG इज वन ऑफ द मेन टेस्ट टू हेल्प द डायग्नोसिस एपिलेप्सी. एपिलेप्सी एक वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर है जहां पे हमारे ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते ड्यू टू दैट डिफेक्टिव इम्पल्स इन अवर न्यूरॉन. तो वो जो भी कहाँ पे क्या डिफेक्टिव हो रहा है, अगर उसको मुझे मेजर करना है तो आई गो फॉर द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. एंड EEG ऑल्सो प्ले अ रोल इन अ डायग्नोसिस अदर ब्रेन कंडीशन. सो लाइक अगर ब्रेन में तुम्हारा कोई ट्यूमर्स है, ब्रेन डैमेज हुआ है ड्यू टू हार्ट इंजरी, ब्रेन डिजीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेफेलोपैथी,
इन्फ्लेमेशन है, जैसे हर्पिस एन्सेफेलिटिस, स्ट्रोक है, स्लीप कंडीशन है, तो ये तुम्हारी जो वेरियस ब्रेन की कंडीशंस है। और अगर हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट कोमा में है, तो कोमा में है तो हमें कैसे पता लगेगा वो इंसान जिंदा है या मरा हुआ है? अल्टीमेटली he patient are not doing any activity ना, so in that condition we also use EEG। क्यों? कोमा में है तो अगर वो जिंदा है तो उसके ब्रेन में कुछ इम्पल्सिस जनरेट होंगे और कुछ एक्टिविटी होगी जो हमें अगेन वेव के थ्रू हम रिकॉर्ड करेंगे। सो EEG also might be used to confirm the brain death in someone in coma। Continuous EEG is used to help to find the right level of anesthesia for someone in a medically induced coma। ठीक है। सो जो EEG है वो वर्क कैसे करता है? बेसिकली तुम्हारा जो क्वेश्चन का पार्ट है CSIR में जो ये लोग पूछते हैं, तो ये 10-20 सिस्टम के बेस पे EEG काम करता है। जैसे अगर मैं हार्ट कंडीशन की बात करूं, जहां पे हम लोग ECG यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें क्या है PQRST वेव्स जनरेट होती है। तो वो वेव्स क्यों जनरेट होती है? क्यों? आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हुआ। तो बेसिकली हमारा हार्ट जो काम कर रहा है उसके बेसिस पे जो वो वेव्स जनरेट होती है, वैसे ये जो हमारा EEG है वो 10-20 सिस्टम पे काम करता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज वेरी इजी। एंड अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो बीच में इंटरप्ट करके एक बार पूछ लेना, ओके। So the 10 and 20 system of the International Federation is an internationally recognized method that use anatomical landmark to standardize the placement of electroencephalographic electrodes। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे अगर कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स का अगर कुछ चेंजेस नोटिस करना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। ये बेसिक केमिस्ट्री है, ओके। तो इलेक्ट्रोड्स में देखो, ये जो 10-20 सिस्टम क्या है कि ये तुम्हारे ये जो भी है, ये जो डॉट्स दिख रहा है, ये FP1, FZ, CZ, PZ, बेसिकली वो इलेक्ट्रोड्स का लोकेशन है जहां पे हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे, ओके। ये देखो, ये P3, T5, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस F, P एंड C, वो क्या है। तो the system is based on the relationship between the electrode location and the underlying area of cerebral cortex, while ensuring that the brain regions are covered। तो 10 and 10 सिस्टम क्या है कि बेसिकली ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये देखो, सी ब्रेन में तुम लोगों बेसिकली तुम लोगों को 4 चीजें याद रखनी है। इसको हम लोग बोलते हैं नेशियन रीजन, जो तुम्हारे नोज के पास होता है। ये तुम्हारा है इंडियन रीजन, जो हेड के बैक साइड पे होता है। और ये है तुम्हारा प्री ऑरिकल पॉइंट्स, जो तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स के लैंडमार्क है। लैंडमार्क मतलब समझते हो, जो मेन रीजन है जहां पे जिसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरे इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये 4 रीजन को सेटअप करेंगे। फर्स्ट इज योर नेशियन, सेकेंड वन इज योर इंडियन, एंड 2 इज योर प्री ऑरिकल पॉइंट्स। दिस आर योर लैंडमार्क पॉइंट, ठीक है। अभी सी, the 10 and 20 system was first presented at the 1957 Brussels 4 International EEG Congress by the Herbert Jesper to standardize the method of EEG placement। सी CSIR पहले साइंटिस्ट के नाम वगैरह नहीं पूछता था, बट लास्ट कुछ सालों से कहीं कहीं पे कि ये मेथड किसने आइडेंटिफाई किया है, कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछना स्टार्ट किया है। That's why मैंने यहाँ पे इनका नाम डाला है। The numbers 10 and 20 refers to the distance between the adjacent electron, where are either 10% or 20% of the total distance। तो नेशियन से फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो 10% डिस्टेंस पे रहेगा, और FP1 से दूसरा जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो 20% पे रहेगा। मतलब ये तुम्हारा डिस्टेंस शो करेगा कि एक इलेक्ट्रोड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड डिस्टेंस कितना रखना है, 10 रखना है या 20% रखना है, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑन द स्केल, नेशियन एंड इंडियन, फ्रंट बैक डायरेक्शन एंड द 2 पीरियोडिकल पॉइंट्स राइट एंड लेफ्ट एज सीन इन अ फिगर। ये मैंने तुम लोगों को, जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडमार्क्स बोलेंगे। ये 4 रीजन इज योर लैंडमार्क। मतलब अगर तुम लोग EEG कर रहे हो तो तुम सबसे पहले ये 4 इलेक्ट्रोड को सेट करोगे ऑन योर ब्रेन, और ये नेशन रीजन, और उसके बाद तुम बाकी के इलेक्ट्रोड्स प्लेस करोगे, ठीक है।
सी एज यू कैन सी दिस इज योर FZ. सी ये FZ CZ क्या डिनोट करता है? बेसिकली ये जो तुम्हारा Z है इस उसको हम लोग बोलते हैं जीरो लाइन, विच इज योर इन अ मिडल पार्ट ऑफ योर ब्रेन. ये देखो, ये तुम्हारा Z मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड होंगे उसको हम लोग एक जीरो बेस लाइन बोलेंगे, ठीक है. और C इज योर T है तो वो टेम्पोरल रीजन है. फ्री इज योर फ्रंटल रीजन, जो मैंने ब्रेन के तुम्हें आगे पार्ट्स बोले थे कि फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल रीजन, तो ये इसको डिनोट करते हैं. तो सी, using these anatomical landmarks, the placement of electrodes can be determined along with this direction with the pre-specified proportion. See, 10% is used from the anatomical landmark, anatomical at the first electrode in this direction. पहला इलेक्ट्रोड तुम लोग कहाँ पे डालोगे? ये तुम्हारा हुआ लैंडमार्क. यहाँ से तुम्हारा पहला इलेक्ट्रोड जो जाएगा वो 10% डिस्टेंस पे जाएगा. ओके, फिर एंड द 20% इज यूज्ड बिटवीन द अदर इलेक्ट्रोड. और बाकी के जो भी इलेक्ट्रोड होंगे उसमें हम लोग जो डिस्टेंस यूज करेंगे वो 20% होगा. फाइन. So I hope you all getting what is the 10% and 10 and 20 system. Okay. So for example, FP1 is placed at the 10% of the total distance from the nation. ये FP1 है जो तुम्हारा जो FP1 है जो हमने नेशन के टाइम से नेशन के पॉइंट से रखा था, वहां पे वो 10% के डिस्टेंस पे होगा. और FZ है वो 20% डिस्टेंस पे होगा. तो पहला इलेक्ट्रोड नेशन के पास, सबसे पहला इलेक्ट्रोड 10% डिस्टेंस पे रहेगा और सेकेंड जो भी इलेक्ट्रोड हम फर्दर रखेंगे वो 20% डिस्टेंस पे रखेंगे. ओके. So the letter of electrode stands for the general brain region that electrodes covered. So क्या होगा? FP मतलब prefrontal और frontal pole. F मतलब frontal, C मतलब central line of the brain, T मतलब temporal, P मतलब parietal, and O is a occipital. Basically these are the region of your brain जहाँ जिसको हम नाम देते हैं कि ये regions है, और जहाँ पे तुम इलेक्ट्रोड डाल रहे हो इसीलिए इसको बोलेंगे फ्रंटल इलेक्ट्रोड, ऑसिपिटल इलेक्ट्रोड रिस्पेक्टिवली. ठीक है. Electrodes have a name that traditionally consists of one or more letter and the number. An example of 10 and layer the okay. और यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था CSIR नेट ने प्रीवियस ईयर्स में कि इवन नंबर और ऑड नंबर. ये देखो यहाँ पे ब्रेन का राइट साइड है, तो राइट साइड पे सारे तुम्हारे इवन नंबर्स है और जो भी तुम्हारे ऑड नंबर्स है वो तुम्हारे लेफ्ट साइड पे है. तो उनका क्वेश्चन ऐसा था कि कौन से रीजन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं और कौन से रीजन में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होता है. ओके. So what do the number 10 system represent? The number is the electrode gives information about the distance from the electron to the midline of the brain. At the midline, the electrode is labeled as the Z to represent the 0. And the electrode number increase as you move away from the midline. So odd number represent the electrodes on the left hemisphere and even number represent the electrodes on a right hemisphere. This line उठा के उन लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन में रख दिया था. ओके, फाइन. सो बेसिकली ये वन काइंड ऑफ ऐसे कैप फॉर्म में होता है जहां पे तुम लोगों को कैप मतलब पहले ये कैप फॉर्म में जो भी पेशेंट है उनको पहनाया जाता है. और जो भी तुम्हारे 4 लैंडमार्क्स है, कौन से नेशन, इंडियन एंड प्रीऑरिकल, उसको पहले हम लोग सेट करेंगे. उसके बेसिस पे हम लोग दूसरे इलेक्ट्रोड्स को वहां पे फिट करेंगे. ठीक है. Repetitive results can only be obtained when the head cap is placed correctly. अगर तुमने वो लैंडमार्क्स अच्छे से सेट नहीं किए हैं तो वो जो एक्टिविटी होगी उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे. बट ऑब्वियस है क्योंकि तुमने इलेक्ट्रोड सही जगह पे प्लेस ही नहीं किए हैं. तो वो जो भी क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा रिजल्ट है वो ग्राफिकल फॉर्म में होता है, तो वो जो भी ग्राफ होगा वो मिस इंटरप्रेट करेगा जो भी तुम्हारा ब्रेन कंडीशन है. Therefore, is it important to choose the right size head cap and check the CZ. CZ मतलब क्या होगा? तुम्हारा central line. Central line मतलब zero जो represent करेगा. Is the middle between the nation and Indian and the 2 pre-auricle points. So I hope you understand what is the 10 and 20 system and why is it important. Okay. नाउ थोड़ा अगर हम एडवांस में जाए, अभी तक हम लोग 10-20 सिस्टम ही यूज करते हैं,
बट बहुत सारी जगह पे दे आर यूजिंग 10-10 सिस्टम और 10-5 सिस्टम। वही है, ये डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करेगा, पर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स बढ़ जाएंगे। वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स बढ़ जाएंगे? क्योंकि हमने डिस्टेंस कम कर दिया। पहले हम 10% 20% पे रखते थे, अब हम लोग रखेंगे 10-10, मतलब हर इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 10-10 होगा और 10-5 होगा, जिसकी वजह से जो तुम्हारा डेटा है वो मोर एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस सिस्टम आर द एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल 1020 सिस्टम एंड यूज एडिशनल इलेक्ट्रोड्स। एडिशनल मतलब इलेक्ट्रोड्स ज्यादा हो जाएंगे। सी एज यू कैन सी इन अ डायग्राम, देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर देयर इन दैट दिस डायग्राम। ठीक है, between the existing system resulting in the higher density measurement। higher density measurement मतलब तुम्हारा हर जो माइनर चेंज होगा तो भी वो तुम्हारा कैप्चर कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स है तो इम्पल्स तो कैप्चर करेंगे। तो अगर कुछ माइनर चेंज भी होगा तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रोड तुरंत कैप्चर कर देगा। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ 10-10 सिस्टम। ओके, पर ये बेसिक तो सेम ही रहेगा कि ये बीच वाला जो है वो तुम्हारा PZ होगा, बाकी नेशियन इंडियन जो 4 लैंडमार्क करने हैं वो तो सेम ही रहेंगे। बाकी के जो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस है वो हम कम कर देंगे इन अ 10-10 एंड 10-5 सिस्टम। ओके, सो बेसिकली देखो ये वर्क कैसे करता है। आई होप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू अंडरस्टैंड। सी दिस इज अवर ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जो भी है वो रीजियंस है ब्रेन के, विच इज योर ऑसिपिटल, फ्रंटल वगैरह। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड को प्लेस किया, वो कैप पहनाई। तो ये देखो ब्रेन के जो तुम्हारा रीजन है वहां पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, और ये जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे वाया द न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप तुम लोगों ने ये चीजें बेसिक है जो तुमने पढ़ी है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक। ये जो होगा ये प्री साइनेप्टिक होगा और ये होगा पोस्ट साइनेप्टिक, और ये जो बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो जब भी कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होता है तो क्या होगा कि तुम्हारे जो प्री साइनेप्टिक लोब है वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। कोई नाम बता सकता है न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा हो सकता है? किसी को कोई आइडिया है न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हो सकते हैं जो तुम्हारी एक्टिविटी को कंट्रोल करे, ब्रेन में इम्पल्स को पास करता है? सो गए, पता नहीं। ओके, सो आई एम जो भी है जो तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, कौन सा केमिकल रिलीज होता है, बोलो भाई। कल्पना, रुद्रांक, सृष्टि, हो ही यहाँ की कहीं चले गए? सर ऑन करके चले गए। डोपामाइन बोला ना, कृषि ने बोला डोपामाइन। यस, डोपामाइन है, एसिटाइलकोलिन है, गाबा है, जो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ये तुम्हारे प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट से रिलीज होंगे। वो डिपेंड करेगा कि एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। तो क्या होगा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स तुम्हारे पोस्ट साइनेप्टिक में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। CSIR में अगर तुम लोग ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, या CSIR नहीं कोई भी एग्जाम में एक बार उठा के देख लेना, यही कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने इतना ट्विस्ट एंड टर्न करके इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो बेसिकली हमारा एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, ये तुम्हारा 70 इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड जनरेट होता है। थ्रेशोल्ड ड्यू टू किसकी वजह से जनरेट होगा कि तुमने कुछ जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलिन की वजह से लो अमाउंट में सोडियम आयन तुम्हारे न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करेंगे, तो वो तुम्हारा -70 से -55 शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयंस अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा, वहां पे वो सोडियम आयंस तुम्हारे एक्टिवेट हो जाएंगे और बहुत सारा सोडियम सेल बॉडी के अंदर आना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन की वजह से जो तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल है वो +40 पे पहुंच जाएगा। +40 पे जाने के बाद
ये वापस से रिपोलराइज करेगा, तो रिपोलराइज होने के लिए इसको क्या करना है, नेगेटिव पोटेंशियल को, वोल्टेज को अचीव करना है। तो ये क्या करेगा, के प्लस को बाहर इफ्लक्स करवाएगा। तो यहाँ पे के प्लस जब इफ्लक्स करेगा तो ये तुम्हारा जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक ग्राफ है जो एक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसमें और ईईजी को कनेक्ट कैसे करना है, तो समझो, जब भी सोडियम आयंस सेल के अंदर जाएंगे वो बाहर नेगेटिव एरिया क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन अंदर जा रहे हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव आयन को अंदर भेज रही हूँ तो बाहर पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और के प्लस में क्या होगा कि के प्लस बाहर जा रहे हैं, तो के प्लस जब बाहर जाएंगे तब सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जो चार्ज का डिफरेंस है वो जो डिटेक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोड करेगा। तो वो कैसे करेगा, तो ये समझो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड यहाँ के ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो तुम्हारा रीजन है, अभी ये तुम्हारा 0 एक बेस लाइन है। अगर तुम्हारे सेल में बाहर की साइड नेगेटिव आयंस ज्यादा है तो ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? ये देखो नीचे की तरफ गया। और अगर बाहर के रीजन में पॉजिटिव आयंस ज्यादा है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। सो बेसिकली न्यूरॉन्स आपस में किस फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको मतलब ग्राफिकल फॉर्म में जनरेट करने का काम ईईजी का है। तो ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, ग्राफ से क्वेश्चन आएगा। आई शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये देखो, ये तुम्हारा नेगेटिव रीजन हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। ये क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सोडियम एंड पोटेशियम आयन के अंदर और बाहर जाने की वजह से। इसमें किसी को डाउट है इतना? आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाला, है ना? ये देखो, ये बेसिक इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर है। आई डोंट थिंक सो वो एग्जाम में पूछेंगे, बट ये मैंने सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है कि इतना छोटा इलेक्ट्रोड ऐसा तो कैसे करेगा। तो वन काइंड ऑफ दिस इंसुलिन पार्ट, शील्डिंग पार्ट, इलेक्ट्रोड प्लेट, एम्पलीफायर प्रेजेंट होता है। और ये देखो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ योर इलेक्ट्रोड। ओके, सी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। क्योंकि सीएसआईआर में हाईली क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए हैं वो इस स्लाइड से पूछे गए। ईईजी सिग्नल्स है जो उसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो वो डिटेक्ट कर सकता है। सो विच इज 0.05 टू 40 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी समझते हो क्या होता है फ्रीक्वेंसी? किसी को आइडिया है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? अगर मैं बेसिक्स पूछूं तो कुछ। फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड दो चीजें हैं। इसमें कोई बता सकता है ये फ्रीक्वेंसी क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है? इस जो भी ग्राफ्स दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन में मेजर होती है। ग्राफ के फॉर्म में कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, वो तुम्हारा डेफिनेशन मैं समझी, पर ये इसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी है और कौन सा एम्पलीट्यूड है, और ग्राफ के बेसिस पे बता सकते हो कि इसमें हायर फ्रीक्वेंसी है और किसमें लोअर फ्रीक्वेंसी है? सो बेसिकली हायर फ्रीक्वेंसी मतलब ये देखो, ये जो नंबर ऑफ ये जो तुम लोगों को लाइंस में चेंज दिख रहा है, तो बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? बेसिकली ये तुम्हारा मिडल से ये जो कितना ऊपर जा रहा है, ये जो लाइन है वो कितनी ऊपर जा रही है, वो तुम्हारा एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये देखो, इस वाला जो कंडीशन है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ वेव्स बहुत कम है और इसमें नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी और इसको हम लोग बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारा ईईजी है वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है। तो देयर आर 5 मेजर ब्रेन वेव्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। अभी समझो, ब्रेन है तो उसकी कुछ 4-5 कंडीशंस होती है। जैसे हम एक कंडीशन है जब हम लोग डीप स्लीप कर रहे हैं, जब हम लोग सो रहे हैं। दूसरी एक कंडीशन है जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। एक कुछ कंडीशन है जब हम लोग कुछ सोच रहे हैं।
और अनदर कोई की कंडीशन है कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, और एक कोई कंडीशन है कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाईली अवेक कंडीशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम क्या काम कर रहे हैं, हमारे ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल में वो डिफरेंस होता है, समझो। तो ये देखो, वन इज योर डेल्टा वेव्स, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इन लोगों ने वेव्स को नाम दे दिया है। सो वन इज योर डेल्टा वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, विच इज योर 0.5 to 4 हर्ट्ज, एसोसिएट विद द डीप स्लीप। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा बैंड, मतलब डीप स्लीप। क्यों? क्योंकि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, पर तुम्हारा ब्रेन एक्टिव है, तो वो बहुत लो अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम का जो भी एक्सचेंज है वो बहुत कम होगा, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये डीप स्लीप वाली कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट इज योर थीटा वेव। थीटा वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 8 हर्ट्ज है, जहां पे तुम डीपली रिलैक्स मेडिटेशन वाली कंडीशन में हो। तो मेडिटेशन कर रहे हो पर तुम जग तो रहे हो ना, मतलब वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है, वन काइंड ऑफ की, हाँ मेडिटेशन कर रहे पर आजू बाजू में कौन सी आवाज आ रही है, कुछ वो सुनाई दे रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी हाई है एज कंपेयर टू डेल्टा बैंड्स। This is your alpha band, which is your 8 to 13 hertz and relaxed passive attention. तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी ज्यादा है। नेक्स्ट इज योर बीटा वेव, जो तुम्हारा एक्टिव माइंड है, जो तुम नॉर्मल जो काम कर रहे हो, अपना उठ के जो भी रूटीनली ड्राइव कर रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, मतलब वो तुम्हारा बीटा बैंड में आएगा कि एक्टिव माइंड है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। एंड गामा मतलब कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम लोग कुछ सीएसआईआर के या गेट बी के या जो तुम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो तुम हाईली एक्टिव कंडीशंस में क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और उसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो ब्रेन है वो हाईली एक्टिव है, जिसमें वो एक्शन पोटेंशियल है वो बहुत हाई अमाउंट में जनरेट हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे गामा वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 हर्ट्ज है, समझ रहे हो? बेसिकली सीएसआईआर में इसी का एक वो आया था कि एक तरफ ये वेव्स के नाम दिए थे और एक तरफ फ्रीक्वेंसी दी थी, और हमें सिर्फ मैचिंग करके आंसर देना था, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया कि ईईजी है क्या, वो काम कैसे करता है, और उसके बेसिस पे उसका आउटकम क्या है। इतना क्लियर हुआ? ये देखो, 0, +10 और -10, अगर नेगेटिव आयन ज्यादा है तो ये वेव नीचे की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। So basically this is the conclusion part of your EEG। EEG में बेसिक इतना ही पढ़ना था, इससे बाहर कुछ ज्यादा क्वेश्चन जाते नहीं है, और अभी तक जितना भी बुक्स है वगैरह में लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, तो उस बेस पर इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। सो इन समरी, बेसिकली 10-20 सिस्टम्स, वो तुम लोगों को पता है क्या होना चाहिए, कि वो तुम्हारा इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है, ओके। फिर एक दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है हाई स्पेटियल रिजोल्यूशन एंड हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो हाई स्पेटियल रिजोल्यूशन क्या होता है कि indicates the system can distinguish very small details and the produces sharp detailed image in context of brain imaging technique like MRI and CT scan। अगर हम लोग MRI वगैरह कर रहे हैं तो वो तुम लोगों को क्या बताएगा कि ब्रेन में कहाँ पे डैमेज है। जैसे हम लोग बोलते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसका ब्रेन कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका एमआरआई कराओ या सीटी स्कैन करवाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें ब्रेन का इमेज देगा कि वो कोई कहाँ पे वो डैमेज हुआ है या कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है वो दिखाएगा। पर जब हम लोग टेम्पोरल रिजोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो जो भी तुम्हारा चेंज है, मतलब तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्या चेंज हो रहा है, जो तुमने अभी पढ़ा डेल्टा वेव, वो चेंज इंडिकेट करता है। तो वो जो रिजोल्यूशन है उसको हम लोग हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन बोलेंगे। तो दिस सिस्टम कैन कैप्चर रैपिड चेंजेस एंड प्रोड्यूस अ डिटेल्ड टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। ईईजी, तो इसका एग्जांपल है ईईजी। तो अगर हम लोग बोले ईईजी कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो काम करता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन पे। वहां पे तुम्हें ब्रेन का कोई इमेज नहीं दिखता, ठीक है। सो दिस इज योर ईजी पार्ट। और मैंने कुछ पीवाईक्यू रखे हैं। अगर तुम लोगों को इतना पोर्शन समझ में आया होगा तो वो तुम लोगों पीवाईक्यू बहुत इजीली कर लोगे। आई होप तुम लोग आंसर दो कि कौन सा आंसर आएगा, और कोई डाउट है तो तुम लोग वो पूछ सकते हो मुझे अभी बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस।
कोई डाउट है? नहीं तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन आंसर यस. Okay, sir. So this is a PYQ. December 2019. Which of the following EEG wave pattern is most likely to be observed in a person during deep sleep? कौन सा होगा? डेल्टा. Yes, डेल्टा वेव्स. ठीक है. सो देखो 2019 का ही क्वेश्चन था और इतना इजी क्वेश्चन कि सिर्फ तुम लोगों को वेव्स के अकॉर्डिंग आंसर देना था. फाइन. सी जून 2018 में EEG is particularly useful for the diagnosing which of the following neurological condition? एपिलेप्सी. Yes, correct. Epilepsy. हाँ, fine. 2015 का क्वेश्चन है, what does the sudden spike of in the EEG recording typically indicates? सीजर एक्टिविटी. Yes, सीजर एक्टिविटी. बेसिकली जो तुम्हारा ब्रेन के जो हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज है, वो जो पूरा जो ग्राफिकल फॉर्म है उसको हम लोग सीजर एक्टिविटी बोलते हैं कि वो इंडिकेट कर रहा है कि क्या चेंजेस हो रहा है. फाइन. सो तुम लोगों को अभी समझेगा क्वेश्चन देख के कि वो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, पर प्रॉब्लम वही होती है कि हमने पढ़ा नहीं होता, तो इसीलिए इतने बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आते. सी 2017 का क्वेश्चन, अ टिपिकल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द बीटा वेव. 13 to 30 हर्ट्ज. यस 30. क्यों? क्योंकि ये एक्टिव कंडीशन शो करता है ना. 13 to 30 हर्ट्ज. फाइन. Which of the following statement about the EEG is incorrect? It has high spatial resolution. अच्छा, anyone else? कोई और? ओके फाइन. इट्स अ स्पेशल. क्यों? क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन किस में दिखेगा? MRI में दिखेगा, जहां पे तुम ब्रेन की इमेज लोगे, है ना. तो ये इसका एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो दिस इज ऑल फॉर योर EEG वाला पार्ट. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड क्या है EEG और तुम लोगों को समझ आया है. तो अगर तुम लोग अग्री हो तो हम लोग पैच क्लैम्प पे मूव करेंगे. पैच क्लैम्प भी बहुत इजी मेथड है, सो वो हो जाएगा. बोलो, कोई डाउट है? These all are the PYQs जो तुम लोग देख सकते हो. 16, 17, 18, 19 ऑलमोस्ट वन ईयर के डिस्टेंस पे वो लोग इसमें से कुछ एक पोर्शन पिकअप करते हैं फॉर द क्वेश्चन.